Hi everyone, welcome to Anthropology for UPSC YouTube channel. In this particular video, we are going to talk about how to attempt previous year question. And through this video, we are going to particularly cover the paper 1. So let's start. See, before I begin further, let me just tell you that हम करने क्या वाले हैं इस particular lecture series के अंदर. I'll take a few questions from the previous year questions, not necessarily all the question. I'll be taking a few selective questions, all right? और पर्पस ये है कि आपको उन सेलेक्टिव क्वेश्चंस की हेल्प से ये बताया जाए दैट हाउ टू टैकल दोज क्वेश्चन इन द एग्जाम टेम्परामेंट. एंड व्हेन आई से दोज क्वेश्चन, तो इनका कहने का ये मतलब है दैट in UPSC examination there are certain questions that might seems very easy on first go, but when you try and go and attempt those questions then you will eventually realize कि okay ये उतना भी easy नहीं है. And sometimes कुछ एक questions ऐसे भी निकल के आएंगे that I'll take further in the upcoming lectures, जिसके अंदर आपको लग सकता है कि ओके ये तो यूपीएससी में डायरेक्टली था ही नहीं आपके सिलेबस के अंदर, बट दैट इज नॉट द केस. एंड वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल ऑफ दैट इज द नतूफियन कल्चर. और जब हम बात करेंगे नतूफियन कल्चर के क्वेश्चन के बारे में देन आई विल डिस्कस फर्दर अबाउट इट. बट अभी के लिए हम इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं विच वॉज आस्क्ड इन योर 2022 सेक्शन ए के अंदर 4C में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा विच सेज critically examine various anthropological interpretation about the Kula ring. So I hope Kula ring के बारे में आप जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं you are well aware about it. If not, I'll give up a link in the description जिसके अंदर आपको Kula ring का जो concept है वो समझाया गया है. You can just watch that lecture. ठीक है? But for rest of you who are well aware about it, they can move ahead with this particular lecture. सबसे पहले if we just talk about the basics, then जब 15 marker के question होते हैं, like here this question carries 15 marks, then you need to answer in approximately 2.5 to 3 pages. यानी कि आपको लगभग इतना लिखना है so that you should have that much of content to write it down on your paper, and of course content that makes sense. ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना. So हम सभी जानते हैं that how do you divide the entire answer writing, that is in your intro, body and conclusion, right? So intro, body और conclusion तो लिखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है, not just limited to this particular question but everywhere. Firstly आप key terms को समझोगे, and if you just look at this question then you will see यहाँ पे critically examine की बात की गई है. Then here is a term called anthropological interpretation. Then here is the Kula ring. ठीक है? तो अब इन टर्म्स को जब आप देखोगे then you should be very clear that what is meant by critical examine. क्योंकि जब आप critical examine की बात करते हो then it simply says कि आपको in depth analysis करनी है. ठीक है? और वहीं अगर examine critically आता then वहाँ पे आपको negative चीज़ें और निकाल के लेके आनी है. So I would suggest you कि ये GS के लिए भी important है, even for your optional it is very important that you should go and brush up all these terms. And if you want that I should make some videos related to this, then just let me know, okay? I'll make a video on the meaning of these terms as well. So सबसे पहले तो आपको key terms समझना है, वो पहला step है किसी भी आंसर को लिखने से पहले. Then you should mentally divide the space because as I told you आपको लगभग 2.5 से 3 pages में लिखना है. And when you have understood the question well, when you have understood the terms well, you should know कि आप कितना इंटरव्यू में डालने वाले हो and then how you are going to proceed further, okay? And then tackling the demand of the question. अब आपको वो नहीं लिखना जो आपको आता है, आपको वो लिखना है जो पूछा गया है. आपको कुला रिंग के बारे में तो पूछा गया है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कुला रिंग का एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है. यू शुड नॉट जस्ट गो राउंड एंड राउंड अबाउट कि कुला रिंग क्या था, माउली एंड ऑल दोज थिंग्स. आपको उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमते रहना है, उसकी इंटरप्रिटेशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है बिकॉज दैट विल मेक द कोर ऑफ योर आंसर. ठीक है? एंड देन कंक्लूडिंग रिमार्क्स. कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो होगा एक ईजी और थंब रूल आप बना सकते हो कि अगर कुछ नहीं याद आ रहा हो देन यू कैन राइट द प्रेजेंट रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस ओवरऑल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है? तो आप ये चीज़ों को थोड़ा लिखने से पहले ध्यान में रखोगे. नाउ टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट दिस क्वेश्चन, आप इंट्रो में क्या लिखोगे? सो इंट्रो में फर्स्ट थिंग कि आपको यहाँ पे कुला रिंग से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई है, यानी कि जो सेंटर स्टेज पे आपका कुला रिंग है. ठीक है? तो कुला रिंग के बारे में आप
इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। और कूलर रिंग के बारे में इंट्रोडक्शन लिखने के लिए एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर किया जा चुका है। दैन दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ द नोट्स। तो इसके अंदर आपको कूलर रिंग के बारे में बताया गया है। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस एंड यू विल सी कि कूलर रिंग है क्या, एंड देन यू कैन ब्रीफली डिस्क्राइब इट in your intro section. Now talking about the various anthropological interpretation, क्योंकि यही आपका मेन बॉडी बनेगा आपके आंसर का। सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आपको कूलर रिंग से रिलेटेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम पता होने चाहिए, एंड द फर्स्ट नेम दैट शुड कम टू योर माइंड इज मैलिनोवस्की, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट था, मैलिनोवस्की ने ये केस स्टडी लिखी थी और दी थी। देन उनके बारे में तो आपको पता ही होगा, एंड हाउ ही इज रिलेटेड एंड हु इज ही बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का बात करें, ही वाज अ फंक्शनलिस्ट, राइट। तो ये फंक्शनल अप्रोच आप दे सकते हो एक इन दी एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, ये तो आपका एक हो गया। बट आप बस उससे तो आगे बढ़ नहीं सकते, आपको और भी आगे चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। देन कमिंग टू दी नेक्स्ट थिंग कि और आप क्या लिख सकते हो उसके अंदर। तो जब हमने इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात की थी, बिकॉज ये पूरा का पूरा कूलर रिंग का जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का जो टॉपिक है विच इज़ योर टॉपिक 3, उसके अंदर का पार्ट है। और जब हमने शुरू में ही बात करी थी, आप लेक्चर्स में भी जाके देखोगे, आप नोट्स में भी जाके देखोगे, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कि मैलिनोवस्की ने कैसे रेसिप्रोसिटी और अल्टरनेटिव मार्केट एक्सचेंज के बारे में बात की थी। वहीं मार्सेल मॉस, इन्होंने भी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में बात की थी। तो आप में से जो भी सज्जन जिन्होंने थोड़ा सा क्यूरियोसिटी दिखाई होगी एंड दे वुड हैव गूगल्ड और रिसर्च्ड मोर अबाउट मार्सेल मॉस, उनको पता होगा दैट मार्सेल मॉस हैव रिटन अ बुक कॉल्ड गिफ्ट। ठीक है, उन्होंने ये गिफ्ट नाम की किताब लिखी थी, एंड इन दिस बुक ही टॉक्ड अबाउट द कूलर रिंग एज वेल। मालिनोवस्की के जो भी लाइक रिसर्च थे, जो केस स्टडी, एथनोग्राफी, व्हाटएवर यू कैन से, उसके बेसिस पे इन्होंने अपनी जो किताब थी उसके अंदर भी इसकी बात करी थी। दिस इज द सेकेंड पॉइंट दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट फॉर योर बॉडी पार्ट। नाउ अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एंथ्रोपोलॉजी का इंटरप्रिटेशन क्या लिखेंगे। सो आई ऑलवेज टेल यू कि जो टॉपिक 6 है पेपर 1 के अंदर, वेयर यू टॉक अबाउट एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आपको एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस पूछे गए हों। आपने पहला फंक्शनलिस्ट लिख दिया, मार्शल मॉस के गिफ्ट रेसिप्रोसिटी के बारे में लिख दिया। देन द थर्ड थिंग दैट यू कैन राइट अबाउट इज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। जब आप स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पढ़ोगे, देन यू विल फाइंड कि कैसे एक सोसाइटी के स्ट्रक्चर को, जब आप कूलर रिंग के बारे में जानोगे, देन यू विल सी कि कैसे ये सोशल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता था, कैसे ये पूरा का पूरा एक नेट इस्टेब्लिश करता था जहाँ लोग आपस में एक्सचेंज भी करते थे, एंड देयर वाज अ काइंड ऑफ इन सोशल रिलेशनशिप। यही तो काम होता है स्ट्रक्चरलिज्म की। जब आप बात करते हो तो वहाँ पे आप इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ते हो और बात करते हो। सो दिस इज हाउ यू कोरिलेट। तो नाउ यू हैव ऑलरेडी गॉट फंक्शनलिज्म के बारे में आप लिखोगे, आप रेसिप्रोसिटी के बारे में लिखोगे, आप स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में लिखोगे, और 3 कॉन्सेप्ट्स आपने कवर कर लिए, दैट इज एनफ। अदरवाइज अगर आपको इसके अंदर और भी चीज़ें इंक्लूड करनी हो, तो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ वेरी डाइवर्स रिसर्च, जहाँ पे आप बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम वहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो और आप उनकी स्टडीज़ के बारे में लिख रहे हो। बट फॉर अस टू गो इन दैट पर्टिकुलर डेप्थ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यूटिलाइजिंग द नॉलेज दैट वी हैव at the right place and at the right point of time is important, which is why I'm telling you कि इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए इन दी राइट मैनर आपको ज़रूरत थी थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाने की, एंड यू कुड हैव इजीली गॉट अ गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, और इसको आप कंक्लूड कैसे कर सकते हो, एज आई टोल्ड यू, कंक्लूजन में आप प्रेजेंट रेलेवेंस यूज़ कर सकते हो, कुछ और एग्जाम्पल्स डाल सकते हो, इम्पॉर्टेंस लिख सकते हो, एंड दिस इज हाउ यू कुड conclude your particular answer. And I hope इससे जो doubts होंगे आपको वो clear हो गए होंगे, and I'll come up with such lectures very soon. Okay, thank you so much.